Hello dear children. Today in this English class we are going to read a poem Books. The name of the poem is Books. First of all, look at this picture. What is shown in this picture? We can see many books in this picture and the two students are also sitting here and they are reading a book. You all know about books. We all are familiar with books. You all also read books like these two children. We read our subject books, English, Hindi, Maths, EVS. Forget all these books for some time. Here in this poem we are not just talking about subject books. Here in this poem we will talk about many books, all kinds of books. For example, story books, novels and pictures books. So in this poem the poet wants to tell us the importance of books and library where we can find many books and we can pick up any book according to our choice for reading. ये जो आपको पिक्चर में दिखाई हुई है, this is the picture of a library. And what is library? Library is a house of books where we can find many types of books. So let's start the poem. Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall, skinny books, up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book! I am again going to read this. Listen carefully the pronunciation of each word. Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall, skinny books, up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book! Now I am going to explain this poem. So listen carefully. Come in. The door of the library is saying that come in. ऐसा लग रहा है जैसे वो वेलकम कर रहा हो, इनवाइट कर रहा है लाइब्रेरी का डोर. कैसे बोलते हुए? कम इन, अंदर आ जाओ. आई ओपनड इट वाइड, कि मैंने उसको पूरा खोल दिया. फिर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जब हम उसको पूरा खोलते हैं. सो वट यू सो, वट ही सा मैनी टाइप्स ऑफ बुक. देर वर मैनी टाइप्स ऑफ बुक्स एंड अ नंबर ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स. द रूम वॉज completely filled with books. What is the meaning of galore? Galore meaning is completely filled with. You can see in library there are many books everywhere in the library. So meaning of galore is completely filled. हर जगह बुक्स ही बुक्स थी वहाँ पे लाइब्रेरी में जब उसने गेट को खोला. नंबर ऑफ बुक्स, लोट्स ऑफ बुक्स. टॉल, स्किनी बुक्स. टॉल मतलब लंबी, स्किनी मतलब वेरी थिन, बहुत पतली पतली बुक्स भी थी. छोटी क्लास में होती है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास में जब आप लोग पढ़ते थे तो आपकी बुक्स जो होती है, पिक्चर्स की बुक्स होती है, वो बहुत पतली पतली होती थी. तो स्किनी बुक्स उन्हीं को बोला हुआ है. टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स. स्किनी बुक्स थी, जो पतली पतली बुक्स थी, वो शेल्व्स के ऊपर रखी हुई थी. लुक एट दिस वर्ड शेल्व्स, SHELVES. दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ शेल्फ, SHELF. सिंगुलर फॉर्म होती है शेल्फ. अलमीरा जिसको बोलते हैं आप लोग, ये सपोर्ट होता है फॉर होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जो जगह बनाते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसको शेल्फ बोला जाता है. दिस इज़ द सिंगुलर एंड शेल्व्स, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ शेल्फ. लाइक दैट लीफ, LEAF, लीफ, it is singular. And what is the plural of leaf? Leaves, LEAVES. We will remove this F and put VES. Leaf ये singular है and it is plural, leaves. Similarly shelf, shelf singular and shelves plural. So कहता है
टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स। जो स्किनी बुक्स थी, पतली पतली बुक्स थी, वो शेल्व्स में ऊपर रखी हुई थी। लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स। और जो मोटी मोटी छोटी छोटी बुक्स थी वो अपने आप खड़ी थी। स्टूड बाय का मतलब होता है खड़े होना, देमसेल्व्स अपने आप। यू कैन सी द कवर ऑफ फैट बुक्स। कवर देखा है ना, फैट बुक्स जितनी होती है, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनका जो कवर होता है बहुत टाइट होता है, तो वो अपने आप खड़ी हो जाती हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो जो लिटिल फैट बुक्स थी वो अपने आप खड़ी थी, स्टूड बाय देमसेल्व्स। आई ओपनड वन अप। उसको इंटरेस्ट आया, लाइब्रेरी में गया, उसको इंटरेस्ट आया तो क्या करता है, ही पिक अप एनी बुक। आई ओपनड अप, एंड उसको स्टार्ट कर देता है वो रीडिंग करने के लिए, सो उसको ओपन करता है। आई ओपनड वन अप, मैंने एक को बुक को खोला, एंड सेट डाउन टू लुक, और वहीं पे बैठ गया। सेट डाउन का मतलब बैठ जाना, टू लुक देखने के लिए, उसको इंटरेस्ट आया रीड करने के लिए, वो वहाँ पे बैठ गया, सेट डाउन हो गया। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज। पिक्चर्स थी उस बुक में बहुत सारी, दैट वाज ए बुक इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। टोल्ड स्टोरीज, उसको ऐसा लगा कि जो पिक्चर्स हैं वो उसको स्टोरी बता रही हैं, मतलब ही कैन मेक देयर ओन स्टोरी। वो अपनी खुद की स्टोरी बना रहा था। ही कैन मेक हिज ओन स्टोरी बाय द हेल्प ऑफ दैट पिक्चर्स। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। आपको कभी कभी पिक्चर्स दिखाई जाती है ना, और उसको बोलते हैं कि इसके बारे में आप अपने 5 वाक्य लिखो या सेंटेंस लिखो, तो आप लोग सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हो पिक्चर्स की हेल्प से। तो उसी तरह से हम पिक्चर्स को देख के स्टोरी भी अपनी फॉर्म कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स। हम बोलते हैं, आप बताते हैं कि मैम इन दिस पिक्चर हेयर दिस इज सिटिंग एंड ही इज़ डूइंग दिस एंड दिस इज शोन इन दिस पिक्चर। ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, उसने ये किया होगा, तो आप अपनी स्टोरी खुद फॉर्म कर सकते हो। तो उसने भी ऐसा ही किया, पिक्चर्स की हेल्प से उसने अपनी स्टोरी की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। व्हाट अ वंडरफुल बुक, उसको फिर मज़ा आया, तो इसलिए वो बाद में कहता है व्हाट अ वंडरफुल बुक, उसने इंजॉय किया उस रीडिंग को। तो वंडरफुल का मतलब होता है वेरी ग्रेट या फिर ब्यूटीफुल, उसको बहुत पसंद आई, सो इसलिए वो कहता है व्हाट अ वंडरफुल बुक। तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। सो व्हाट इज़ द समरी ऑफ द पोएम? द पोएम टेल्स अस हाउ अ लाइब्रेरी वेलकम पीपल टू कम इनसाइड। उसके अंदर आने के लिए कैसे वेलकम कर रहा है लाइब्रेरी का डोर। एंड रीड सम बुक्स इनसाइड द लाइब्रेरी। वी कैन सी वेराइटी ऑफ बुक्स, they are of different shapes and sizes also, and we can pick any books of our interest. So what are the new words? The new words of the poem is library, wide, galore, skinny, shelves, wonderful. What is the meaning of library? Library is a house of books, a place where books are kept. वाइड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइड? टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जब हम पूरा ओपन कर देते हैं डोर को, वाइड ओपन हो जाता है वो। गैलोर, कंप्लीटली फिल्ड विद, कोई भी प्लेस, जैसे आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इज कंप्लीटली फिल्ड विद बुक्स, सो गैलोर कंप्लीटली फिल्ड विद। स्किनी, वेरी थिन। शेल्व्स, अ सपोर्ट फॉर होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट। Wonderful, beautiful, very great. These are the new words. We should read books and we should enjoy reading books. So, what is the importance of books? We all know that books gives us knowledge, improve our vocabulary, boosts our confidence and are a great source of learning. हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना, बुक से ही तो सीखते हैं। हर चीज़ नहीं हमें बुक से पता चलती है, हमारी वोकैब बढ़ती है, हमें ज्ञान होता है, तो ये सारी बुक्स के हमारे इम्पोर्टेंस हैं। सो रीड दिस पोएम।